नमस्कार साथियों, welcome to my coaching center. Today we are here to discuss about first lessons exercise of class 6th NCERT MP board. First point is to join the words. Join the words. Friends, how can we join the words? Just like some examples, one word is hand and other word is bag. While we join this, we found that hand bag is made, which is also a compound word. We can make more words like that, adding made, handmade, hand plus writing makes handwriting. So this is the solution. Hand and bag makes handbag. Hand and made makes handmade. Hand and writing makes handwriting. Next, we can add bath and tub and make bathtub. Bath and soap. So bath soap. Bath and room. Bathroom. Bath form, and many more words. We can also add rain and coat makes raincoat. Rain and bow makes rainbow. Rain and water makes rainwater. Friends, next we can add finger plus tip plus print and fingertips also. We can create fingertip, fingerprint and fingertips. So by that
Simply we can join the words and make some useful compound words. Handbake mates handbake. So students, we have to just add these two words and make a meaningful new word which is made by two individual words. So we can call it compound word. Compound word. Next, in class 6th NCERT, we have to discuss is hidden words. Hidden words. Hidden words means छिपे हुए. Just like that, one word is SEARCH, search. So we are now creating two words from this. We can add, we can divide it two parts, SEAC and EAR here. These two words are from this pattern. So these are the two hidden words. Just like that, we have to make two new words from these sparrows. So we can make arrow and row. Two words from this arrow and row. Next is flower. So by this we can make low and flew. These two words. By banyan, so we can make an. One word is an. Second word is any. So this is called hidden words pattern. So friends and students, we move forward and discuss more about things. So let me complete it. Now we move to question answer pattern. First question is, what is the lesson about? We are talking about the lesson the tree. What is the lesson about? What is the lesson about? So our answer is the lesson is about a 50 years old
banyan tree. Big banyan. Our second question is, what do the village children do? What do the village children do when they get tired? So students, the answer is they sleep under its shade. They sleep under its shade. Our third question is, who take rest at night in the tree? So be erase first. Who take rest at night in the tree? So our answer is small animals, small animals, many words, insects take rest at night in the tree. Fourth question is, this is fourth question. Actually, third question is, why do the passers-by, why do the passers-by, why do the passers-by sit under the tree? Sit under the tree. So our answer is, the passers-by sit under the tree to take some rest. Question number 5. Where do we get fresh air from? Answer is, we get fresh air from the trees. Just last question. What should we do? What should we do for the trees?
तो आंसर इज बी शुड लव एंड केयर फॉर द trees. So these are some questions. What is the lesson about means पाठ किसके विषय में है. What do the village children do when they get tired? तो the village children का मतलब गांव के बच्चे क्या करते हैं जब वो थक जाते हैं. Why do the passers-by sit under the tree? राहगीर पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं. Who take rest at night in the tree? रात में पेड़ के नीचे कौन रेस्ट करता है. Where do we get fresh air from? हमें ताजी हवा कहाँ से मिलती है. एंड लास्ट, where do we get fresh air from? तो we get fresh air from the trees. What should we do for the trees? हमें पेड़ों के लिए क्या करना है. तो we should love and care for the trees. तो friends, the question answer part is completed. By that we move forward our last topic of this exercise, that is degree of comparison. Degree of comparison. Before we move to degree, we should discuss about something. If I ask you a question, did you like mango? You should give me the answer just like that. Yes, I do. Or you should call this, no, I don't. No, I don't. So this is the pattern of simple questions, yes no type questions. If someone asks you, did you like, did you see this, did you do, you should call them yes I do if you do. अगर आप कर सकते हैं तो yes I do, नहीं कर सकते तो no I don't. या आपको पसंद है तो yes हाँ मुझे पसंद है, नहीं है तो नहीं पसंद. ये एक पैटर्न है जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा. अब हम मूव करते हैं डिग्री की तरफ. सो बिफोर वी मूव टू डिग्री वी शुड नो अबाउट एडजेक्टिव्स. व्हाट इज एडजेक्टिव्स? हिंदी में हम इसे विशेषण कहते हैं. एडजेक्टिव आर वर्ड्स which qualifies a noun or pronoun. एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, संज्ञा या सर्वनाम की कुछ स्पेशल कंडीशंस को बताना. तो ये काम है एडजेक्टिव्स का. एडजेक्टिव यानी विशेषण, इसी के अंदर हम, ये चूंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ स्पीच का, तो विशेषण के बारे में आगे हम हिंदी में भी जानते हैं कि क्रिया या वो कर्ता या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ये बताते हैं. तो एडजेक्टिव्स से ही हम निकालते हैं डिग्री. क्या निकालते हैं? डिग्री. हिंदी में इसे हम श्रेणी कहते हैं. तो एडजेक्टिव्स यूज कैसे हम करेंगे? तो हम लोगों ने देखा होगा, जैसे एक वर्ड में लिख रहा हूं गुड, फिर इसका ही एक दूसरा पार्ट बनता है बेटर,
और तीसरा बनता है बेस्ट। तो हमें आज इसके विषय में जानना है कि ये गुड कब यूज करना है, बेटर कब यूज करना है और बेस्ट कब यूज करना है, यही डिग्री कहलाती है। तो एडजेक्टिव्स की भी डिग्री होती है और ये डिफाइन कैसे होगी, तो इसके लिए हमें नाउन या प्रोनाउन के नंबर के बारे में जानना होगा। नाउन या प्रोनाउन का नंबर, यदि नंबर की बात करें, गुड का मतलब होता अच्छा, इसका मतलब ज्यादा अच्छा, और इसका मतलब सबसे अच्छा। साथियों, एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो क्लास में जब बहुत सारे बच्चे हैं और मान लीजिए यहाँ पे टीचर है, अब टीचर को मान लो कि इनमें से किसी एक बॉय की विशेषता बतानी है। मान लो इसका नाम है रोहन, तो सर क्या बोलेंगे, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन कैसा है, गुड। तो यहां आप ये देखिए कि गुड का यूज हम केवल रोहन के लिए करते हैं। तो 1 पर्सन होना चाहिए पहले, तो 1 पर्सन, कंपेरिजन नहीं होता इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का पार्ट है। डिग्री के 3 पार्ट होते हैं। पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होता। जब कोई कंपैरिजन नहीं होगा तो सिंपली हम उसको यूज कर लेंगे, रोहन इज अ गुड बॉय। लेकिन मान लीजिए कि अगर टीचर को यही बात 2 बॉयज के बीच में बतानी, मान लो ये है सोहन, तो अब टीचर क्या बोल रहे हैं कि रोहन इज बेटर देन सोहन। तो यहां समझिएगा बात को। अब रोहन अकेला नहीं है, यहां रोहन भी है और सोहन। कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन। अब कंपैरिजन किन के बीच में होगा, 2 पर्सन। यहां कितने के बीच में था, 1 पर्सन। तो जब हम 2 पर्सन या 2 आदमी, 2 व्यक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें उस वक्त कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करना है। ये कौन सी डिग्री कहलाएगी, कॉम्पेरेटिव डिग्री। साथियों, कॉम्पेरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है, किसके बीच में होता है, कंपेयर हम करते हैं 2 पर्सन को। 2 पर्सन को जब हम कंपेयर करेंगे
तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। सिंगल पर्सन होगा पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। ध्यान रखने की बात यह है कि जिसकी डिग्री बताई गई है उसके ठीक बाद हमें देन का यूज प्रयोग करना है। देन का, देन सोहन, सोहन से। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं उसके ठीक बाद देन का प्रयोग अवश्य करें। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाया जाता है। अब एक लास्ट फाइनल डिग्री बची है, वो है सुपरलेटिव डिग्री। उसके बारे में भी जान लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इसमें क्या होता है, कंपेयर तो हम करते हैं लेकिन ऑल के साथ। ऑल मतलब सभी। अब इस पूरी क्लास की बात करें, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, कंपेयर किससे होगा, इस बार कंपेयर होगा ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ना तो ये सिंगल है ना ये डबल है, अब तो कई सारे लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि हमें किसी की विशेषता बतानी है, जैसे इसकी बतानी है, ये है गोपाल। तो अब सर क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे गोपाल इज द बेस्ट। तो ये जो बेस्ट आया ये है सुपरलेटिव डिग्री। साथियों सुपरलेटिव डिग्री का यूज हमें पूरे ऑल के बीच में करना है। यानी तुलना जब हम कई व्यक्तियों से कर रहे होते हैं और उनमें से सबसे अच्छा बेस्ट कहलाता है। तो गोपाल पूरी कक्षा में सबसे होशियार, सबसे अच्छा बच्चा है। तो इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री डिफाइन करती है क्वालिटी ऑफ ऑल। याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज भी करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब साथियों हमें कंपेयर करना तो आ गया होगा। एक होगा, एक की बात करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री, दो के बीच की बात करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद देन। और अगर सभी के बीच में से किसी एक की बात करनी है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे और उसके ठीक पहले आर्टिकल द का यूज भी करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे एक्सरसाइज में क्या था। हमारे एक्सरसाइज में सिंपल डिग्री बनाने के लिए आता है, पेपर में बोलेगा आपसे, एक वर्ड दे देगा। जैसे मान लीजिए हमें पता है 3 टाइप की डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। अब साथियों मान लीजिए जैसे अभी मैंने बताया था गुड, बेटर, बेस्ट। हमारे जो सिलेबस में है वो है बिग, वाइड, टॉल, डीप, स्वीट और स्लो। इनकी हमें डिग्री बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा एक तरीका याद कर लीजिए। इसको याद कर लेना, इसका बिगर हो जाएगा और इसका बिगेस्ट। पीछे जी होने पर डबल जी हो जाता है, याद रखिएगा। फिर तो ई आर और ई एस टी लगाया गया, देख लीजिए आप लोग। कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए ज़्यादातर सेंटेंसेस में ई आर लगाना होता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाना होता है। जैसे अब देखिए यहाँ लगा रहे हैं, मान लीजिए पीछे पहले से ही बाई ई है तो ई को हमें
इग्नोर इस ई को इग्नोर कर देंगे फिर वहाँ। तो क्या करेंगे, जैसे वाइड लिखा हुआ है तो अब केवल आर लगाएंगे, अब केवल आर लगाएंगे, और इधर भी केवल एस टी लगाएंगे, क्योंकि ई एस टी और ई आर तो हो ही जाएगा। डीप डीपर हो जाएगा और ये डीपेस्ट हो जाएगा। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वेटर नहीं है, स्वीटर है। स्वीटर मतलब मीठा, ज्यादा मीठा। स्लो, स्लोअर एंड स्लोएस्ट। तो ये सिंपल है। ई आर और ई एस टी लगाकर हमें अपने सिलेबस में ये काम कर लेना है। तो साथियों, एक्सरसाइज लेसन फर्स्ट क्लास 6 NCERT एमपी बोर्ड पैटर्न आज कंप्लीट हुई। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।